Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Good morning, sir. Good sir. morning, sir. Okay. What we discussed in last lecture? Implicit function. Okay. Implicit. एग्जाम्पल 3 बाकी था. Okay. Implicit function start कर दिया था. यस सर। यस सर, उसमें एग्जाम्पल 3 करवा रहे थे आप. Please mute your mic. Please mute your mic. Okay. Thank you. Okay. Next. Okay. So we start partial derivative and geometrical interpretation, Euler's theorem with corollary and their applications. Then we discussed about the chain rule. Now today we are going to discuss about the implicit function. Okay, so implicit function, please 1 minute. 4.4, yes. Okay. Please mute your mic, student. ओके सो इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने क्या किया था? इफ द फंक्शन ऑफ लाइक एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ओके, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके, और इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, देन ट्रांसफर इट इनटू एफ एक्स एंड देन find del f upon del x plus del f upon del y into dy by dx is equal to 0. So we have the formula: if del f upon del y not equal to 0, then dy by dx is equal to minus del f upon del x upon del f upon del y is equal to minus fx upon fy. Okay, and for three variable we have two different cases, and from these two different cases we have del f upon del z not equal to 0, then del z upon del x is equal to minus fx upon fz and del z upon del y is equal to minus fy upon fz. अब इसके एग्जांपल कर दिए थे हमने या बाकी थे? सर थर्ड पहुंचे. एग्जाम्पल 3. Okay, एग्जाम्पल 3 आधा करवाया था. very good. Okay, example number 3. Okay, so this one. Yes, sir. Okay. Yes, Assume sir. that assume that the equation y square plus xz plus z square minus e raised to z minus c is equal to 0 defines z as a function of x and y. Say z is equal to f of x y. Find the value of the constant c such that f of 0 e is equal to 2 and compute the partial derivatives del z upon del x and del z upon del y at the point xy is equal to 0 e. Okay, तो पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे हम? पहले we have to find c. Okay, then we go for the del z upon del x and del z upon del y. Okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We have the one relation f of 0 e is equal to 2. तो compare this f of 0 e is equal to 2 with f of xy is equal to z. So what is my value of x, y and z? X 0 0 y E 0 equal to z 2. Yes, x is equal to 0, y is equal to e and z is equal to 2. Up to here any problem? Up to here No, any? sir. Okay. No, sir. No, sir. Now think about this. So this is the f of x, y, z is equal to 0. Okay, f of x, y, z is equal to 0 है, उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं? 0 e2 है ना. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है f of x, y, z is equal to 0. उसमें हम सब्स्टिट्यूट करो ये सारी वैल्यू, तो क्या मिलेगा? देखो e स्क्वायर है ना प्लस x into z. X into z means 0 into 2, that means 0, plus 4, 2 square means 4, minus e raised to 2, okay, minus c is equal to 0. अब यहाँ पे स्क्वायर भी कैंसिल आउट क्योंकि प्लस माइनस है, दैट मीन्स 4 माइनस c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको? 4.
4. So my new f of x y z is equal to क्या हुआ, y square plus xz plus z square minus e raised to z minus 4. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें से मुझे डेल z अपॉन डेल x फाइंड करना है. So what is my formula for del z upon del x? Minus fx upon fz. माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड. तो माइनस एफ एक्स मीन्स इसका रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का 0, एक्स जेड में से जेड आएगा, जेड स्क्वायर का 0 माइनस 0, दैट मीन्स जेड बचेगा, डिवाइड बाय एफ जेड. एफ जेड मीन्स इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर का 0, एक्स जेड का एक्स, ओके, जेड स्क्वायर का 2z, डन, and minus e raised to z का e raised to z. Clear everybody? Yes, sir. Then del z upon del x at कौन से पॉइंट के लिए फाइंड करना है, कौन से पॉइंट? 0 नहीं नहीं, वो तो आपको दिया है कि 0 e है, लेकिन एक्चुअली ये 3 वेरिएबल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको z भी है इन्वॉल्व. क्लियर एवरीबॉडी? Zero comma two. z की वैल्यू E2 पे आपको फाइंड करना है ना, तो 0e2, तो यहाँ पे 0e2 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -2 अपॉन x की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस e रेज़ टू z मीन्स 2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा -2 अपॉन 4 माइनस e स्क्वायर. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सेम तरीके से हम डेल z अपॉन डेल y भी फाइंड कर सकते हो. तो लुक एट हियर, सो f ऑफ x y z इज इक्वल टू जो दिया था वो हमने लिखा, f ऑफ 0 e इज इक्वल टू 2 से हमने निकाला z की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू e एंड z इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसमें हम वो पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिला c इज इक्वल टू 4. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कांस्टेंट c फाइंड करना, वो हमको मिल गया. नाउ माय न्यू f ऑफ x y z क्या होगा, जो हमने लिखा था वही का वही है, इक्वेशन नंबर 1 बोला उन्होंने. देन डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z रिस्पेक्टिवली वी गेट, मींस उन्होंने तीनों अलग तरीके से पहले फाइंड कर दिए और उसके बाद वो डायरेक्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये भी हम कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बाद उन्होंने एट पॉइंट 0e2 तीनों को फाइंड कर दिया, del f अपॉन del x एट 0e2, तो 2 मिला, del f अपॉन del y एट 0e2 तो 2e मिला, एंड del f अपॉन del z एट 0e2 4 माइनस e स्क्वायर मिलेगा. तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे del z अपॉन del x की फॉर्मूला में, तो जो हमारा आंसर आया वही आया. देखो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, देखो -2 अपॉन 0 प्लस 4 माइनस e स्क्वायर. तो हमने कहाँ पे गड़बड़ किया, वहां पे प्लस क्यों आ रहा है, ओके देखते हैं. चलो, तो यहाँ पे -2 अपॉन 0 सर 4 वो स्क्वायर -4 कर दिया ना, वो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे. यस यस, डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर दिया है, बाकी हमारा ही आंसर है. ओके, तो यहाँ पे देखो ये था 4 माइनस, दिस इज आवर आंसर, एंड उन्होंने क्या किया, जो आगे पीछे कर दिया, तो 2 अपॉन e स्क्वायर माइनस 4. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेम तरीके से हम del z अपॉन del y फाइंड करें, तो द फॉर्मूला फॉर दैट इज माइनस del f अपॉन del y डिवाइड बाय del f अपॉन del z एट 0e2. इफ यू सब्स्टिट्यूट del f upon del y at 0e2, तो that means 2e डिवाइड बाय 4 माइनस e स्क्वायर. तो यहाँ पर भी उन्होंने जो डिनोमिनेटर है उसमें से माइनस कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, that means 2e upon e square minus 4. So is there any doubt, any confusion in this example? Anybody? No, sir. Okay, then next example, find del z upon del x and del z upon del y at 1 1 1 if z cube minus xy plus yz plus y cube minus 2 is equal to 0. तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि इम्प्लिसिट का एग्जांपल है. कैसे, तो यहाँ पे आप देखो तो f of x y z is equal to 0. अगर यही एग्जांपल मैं सिर्फ इतना चेंज कर देता, -2 को उस साइड पे ले जाऊँ, तो ऊपर भी किसका एग्जांपल रहेगा, ये
इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट था। और इस तरीके से आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे कांस्टेंट को मूव करके दे देंगे, लेकिन वो आपको -2 जो 2 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करके 0 करके ही आपको कैलकुलेट करना है। देन तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 होने से मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। देन आई फाइंड 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? एनीबडी? No, sir. नो सर। I am expecting from all the student. Please reply. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. That means del f upon del x हुआ मेरा -y, क्योंकि यहाँ पे x एक ही जगह पे है तो उसका 1 हो जाएगा और ये -y। del f upon del y अगर आप फाइंड करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो यहाँ पे y 1, 2 एंड 3 जगह पे है तो -x प्लस z प्लस 3y स्क्वायर होगा। एंड del f upon del z आप फाइंड करेंगे तो 3z स्क्वायर प्लस y हो जाएगा। ओके, सो दिस इज माय 3 partial differentiation. Now here given point is 1 1 1, so at point 1 1 1 तीनों को फाइंड कर देंगे तो at 1 1 1 फाइंड करेंगे तो del f upon del x at 1 1 1 -1 मिलेगा, del f upon del y at 1 1 1 -1 प्लस 1 प्लस 3, दैट मींस ये कैंसिल हो जाएगा और 3 आंसर आएगा। del f upon del z at 1 1 1 अगर आप फाइंड करेंगे तो 3 प्लस 1 होगा, दैट मींस 4। ओके, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नाउ del z upon del x at 1 1 1 is equal to minus del f upon del x upon del f upon del z at 1 1 1 is equal to, यहाँ पे del f upon del x जो है वो क्या है हमारे पास -1 है, ये होगा -1 अपॉन ये है 4, तो -1 अपॉन 4। ओके, और ये माइनस तो बाहर ही है तो माइनस माइनस प्लस होके 1/4 आएगा। सेम तरीके से del z अपॉन del y एट 1 1 1 आप फाइंड करेंगे, फॉर्मूला माइनस del f अपॉन del y अपॉन del f अपॉन del z एट 1 1 1, तो माइनस तो था ही। अब del f अपॉन del y मेरे पास 3 है तो 3/4 होगा, तो यहाँ पे -3/4 इज द फाइनल आंसर। एनी डाउट? नो सर। व्हाट अबाउट अदर्स? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। Okay, then next example, find dy by dx at 0 ln 2 if x e raised to y plus sin xy plus y minus ln 2 is equal to 0। अब जब भी ऐसे एग्जांपल दिया है तो सबसे पहले इसके बारे में सोचना, क्योंकि ये एंगल में है या फिर मल्टीप्लाई में है वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन जब ऐसे दिया है तब वो एंगल में ही होगा, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं साइन x इंटू वाई, एंड कभी कभी क्या लिखते आ जाता है साइन एक्स वाई, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। सेम है फंक्शन या डिफरेंट है? डिफरेंट। Different. Different. थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे जो है वो एंगल में एक्स वाई उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई ही है ना या जेड है? एक्स वाई है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसलिए आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स बोला है ना, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई माइनस ln 2। ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x का 1, दैट मींस ई रेज़ टू वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई। ओके, क्योंकि साइन का क्या हो जाएगा cos, एंड एक्स वाई जो है उसमें से x का 1 और y बचेगा, चेन रूल यहाँ पे यूज किया है। डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x ई रेज़ टू वाई, तो x ई रेज़ टू वाई एज इट इज, प्लस यहाँ पे फिर से साइन का cos एक्स वाई, एंड एक्स वाई में से विथ रिस्पेक्ट टू y का करेंगे तो x रहेगा y का 1 और यहाँ पे y का +1, ln 2 का 0। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला से पहले हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट 0 ln 2 अगर आप फाइंड करेंगे तो e रेज़ टू ln 2 प्लस ln 2 मींस log 2 इनटू cos 0 इनटू ln 2। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर e रेज़ टू log e बेस x होता है तो हम क्या करते हैं, आंसर एक्स X आ जाता है। सेम
यहाँ पे 2 आ जाएगा, ln2 एज इट इज। अब यहाँ पे cos 0 इंटू समथिंग, दैट मीन्स cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होता है? 1 1 प्लस log 2 होगा, ओके, बेस ई। सेम तरीके से डेल एफ अपॉन डेल वाई हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू ई रिज टू ln2 प्लस 0 इंटू कॉस 0 इंटू ln2 प्लस 1। तो ये तो दोनों 0 इंटू समथिंग है, तो 0 हो जाएंगे और 1 बचेगा, तो 1। ओके, नाउ dy by dx at 0 ln2 is equal to minus del f upon del x upon del f upon del y at 0 ln2 is equal to minus, अब यहाँ पे देखो del f upon del x क्या था हमारे पास, 2 plus ln2 था, तो मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। del f upon del y मेरा 1 था, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे बचेगा minus 2 plus ln2। Is it clear everybody? Yes sir. Any doubt, any problem? No sir. Okay, then next find del z upon del x and del z upon del y at pi if sin x plus y plus sin y plus z plus sin x plus z is equal to 0. तो what is here my f of x y z आएगा ना? Yes, sir. Okay, Yes sir. f of x y z is equal to 0 है, तो उससे ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो कंसिडर या फिर लेट f of x y z is equal to sin x plus y plus sin y plus z plus sin x plus z। अब उसका मैं तीनों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर दूंगा। तो डेल f अपॉन डेल x मेरा क्या होगा, sin का cos x plus y का 1 plus 0। तो अगेन cos यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका 0। यहाँ पे x है तो sin का cos x plus z का 1 plus 0। ओके, तो यहाँ पे मुझे डेल f अपॉन डेल x मिला। डेल f अपॉन डेल y सेम, यहाँ पे y है तो उसका cos x plus y होगा, यहाँ पे y है तो उसका cos y plus z होगा, इसका 0 हो जाएगा। डेल f अपॉन डेल z करेंगे तो cos y plus z प्लस cos x plus z होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पार्शियल डेरिवेटिव में कोई डाउट? No sir. No sir. एट पाई करेंगे तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू पाई एंड z इज इक्वल टू पाई। सो डेल f अपॉन डेल x एट पाई cos पाई प्लस पाई cos पाई प्लस पाई, तो cos 2 पाई प्लस cos 2 पाई, तो 2 cos 2 पाई। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि cos n पाई की वैल्यू, जनरल आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, थर्ड सेम में आएगा, -1 रेज़ टू n होता है। दैट मीन्स इफ यू गो फॉर cos 2 पाई तो -1 रेज़ टू 2 इट गिव्स मी 1। yes or no? Yes sir. Yes. सेम तरीके से मुझे कोई पूछे कि cos 5 पाई क्या होगा, तो क्या आएगा आंसर? -1. -1. ओके, तो ये थोड़ा याद रखना तो इजी रहेगा। सेम अगर आपको साइन के लिए जानना है तो साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है, चाहे आपको साइन 100 पाई पूछे तो पर भी 0। डन? क्लियर? Yes sir. तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया तो 2 बचेगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पाई करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आपका आएगा और आंसर भी 2 ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल जेड, सेम एक्सप्रेशन, आंसर भी सेम। तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट पाई फाइंड करने के लिए बोला था, उसकी फॉर्मूला है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। आप सब्स्टिट्यूट करो 2 -1 आंसर आएगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई एट पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 एंड ओके, डन? क्लियर एवरीबॉडी? ये एग्जांपल में कोई डाउट? No sir. No sir. सो पूरे ये लाइक करो ना। ओके यस, दिस वन। यस सर। Okay. So is there any doubt in implicit function? Anybody? नो सर। Okay. So if you have no doubt, then we go for the next topic. So 1 minute. Okay. So this is about the implicit function. देखो आपका ये implicit function के examples यहाँ पे complete हो गए. Done? Okay. Now we go for the next topic. वो आपको बता देता हूँ कि कौन सा है पहले। Okay, यहाँ पे देखो। Yes.
ओके सो यहाँ पे देखो हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए यूनिट नंबर 4 में, पार्शियल डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ऑयलर्स थ्योरम विद कॉरोलरी एंड देयर एप्लीकेशंस, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शंस. नाउ वी गो फॉर द टोटल डिफरेंशियल्स. ओके एवरीबॉडी, last topic we are going to discuss about the last topic. It is very easy topic. Done. So total differentials. Total differential means क्या है, तो यहाँ पे देखो total differential means suppose z is equal to f of x y is a function of two variables x and y. The total differential, यहाँ पे देखो total differential is defined as dz. means हम यहाँ पे क्या करते थे पहले dz by dx के ऐसा कुछ लिखते थे ना, इससे सिंबल यूज करते थे, लेकिन वो नीचे वाला यहाँ पे नहीं आएगा. दैट इंडिकेट्स द टोटल. दैट मींस dz इज इक्वल टू क्या होगा, पहले फर्स्ट वेरिएबल के लिए दैट मींस del z अपॉन del x इनटू dx प्लस del z अपॉन del y इनटू dy. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. Yes, sir. यस सर. Okay. If I extend this formula for three variables, then what is my formula? du del u by del x into dx plus del u by del y into dy plus del u by del z into dz. तो आपको अगर टू वेरिएबल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, थ्री वेरिएबल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है. अब ये यूज करना मीन्स आपको अगर टू वेरिएबल है तो ये दो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सेम तरीके से यहाँ पे आपको तीन पार्शियल डिफरेंशियल थ्री पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. क्लियर एवरीबॉडी? यस Yes, सर. sir. ओके, बहुत सिंपल है ये टॉपिक. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द टोटल डेरिवेटिव. यहाँ पे लिखा ही होगा तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे क्या फाइंड करना है. अगर z है तो मुझे dz फाइंड करना है ना. अगर u है तो du फाइंड करना है. ओके, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू 4x³ माइनस xy² प्लस 3y माइनस 7. ओके, तो अब मुझे यहाँ पे dz फाइंड करना है. तो व्हाट इज माय प्रोसीजर? del z upon del x into dx plus del z upon del y into dy. First identify how many variables in given expression. कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे राइट साइड पे? Two. टू. तो यहाँ पे टू तक जाना है ना, टू तक ये जाना है. तो यहाँ पे del z upon del x अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू x? कौन बताएगा? 12x square minus y स्क्वायर, बस इतना ही. ओके, इनटू dx. ओके, del z by del y फाइंड करूँ तो minus माइनस 2xy plus 3 प्लस 3 माइनस 2xy है ना प्लस 3 इंटू dy. क्लियर? यस और नो? यस सर. yes sir यस सर. एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे देखो, here z is equal to this one, then del z upon del x फाइंड किया, del z upon del y फाइंड किया, वो दोनों को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया. द टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z इज dz is equal to del z upon del x dx plus del z upon del y dy. ओके, सो यहाँ पे देखो 12x² minus y² dx plus minus 2xy plus 3 dy. एग्जाम्पल कंप्लीट. डन? यस सर. ओके, Yes, sir. इतना ही करेंगे. बस इतना ही करना है. डन? यहाँ पे क्या किया, सिर्फ आगे पीछे लिखा है, नो इश्यू है ना. तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन ऑब्टेन du. यहाँ पर du मींस क्या फाइंड करने के लिए बोला है? total derivative Total difference. टोटल डेरिवेटिव. डेरिवेटिव. टोटल डिफरेंशियल. ओके, तो यहाँ पे देखो उसकी फॉर्मूला आपको याद करना है बस. du इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने वेरिएबल है राइट हैंड साइड? 3 3. तो 3 वेरिएबल है आपको. दैट मींस del u by del x dx प्लस del u by del y dy प्लस del u by del z into dz. अब ये तीनों ही तीनों फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो del u by del x क्या होगा? y z. वाई जेड. del u by del y z x z. एक्स जेड. del u by del z
X, Y. एक्स वाई एग्जाम्पल कंप्लीट। ओके, अब ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, वो कोई पॉइंट दे के बोल सकते हैं, है ना? डन एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर तो यहाँ Yes, sir. u is equal to x y z, del u by del x, this one del u by del y, this one del u by del z, this one. Now substitute in the derivative, that means the total derivative of a function u is du is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz. उसमें आप substitute करो del u by del x, del u by del y, del u by del z, तीनों ही तीनों, then that is your final answer. Any confusion, any doubt, any question? No, 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 sir. sir. सर Okay, चलो next, find total derivative of the function z is equal to x cos y minus y sin x. चलो इसके लिए ट्राई करो तो सब लोग, उसके बाद देखते हैं। चलो हो गया सर Done, sir. हो गया डन सर done. ओके गुड। तो यहाँ पे देखो उसका आंसर देख लिया सबने। z इज इक्वल टू क्या होगा, x cos y माइनस वाई साइन x दिया है, देन डेल z अपॉन डेल x आप फाइंड करेंगे तो cos y माइनस वाई cos x होगा, डेल z अपॉन डेल y फाइंड करेंगे तो माइनस x cos y माइनस साइन x होगा। द टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z इज dz इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x dx प्लस डेल z अपॉन डेल y dy। ओके, तो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये मिल जाएगा, डेल z अपॉन डेल y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखो, अच्छी तरीके से मीन्स यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन निकल रहा है तो माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दो। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर Yes, sir. एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल, इसके लिए भी ट्राई करो। चलो इसके लिए ट्राई करो। सर आगे वाले आंसर में गलती थी कौन सा? सर, इसमें dz बाई dy है, उसमें x वो नहीं आएगा ना उसका, तो डेल z पे डेल y में, हाँ डेल z बाई डेल y में। डेल z माइनस एक्स साइन वाई आएगा। x हाँ आएगा। सर, माइनस x साइन y है। Cos की जगह sin आएगा। 1 मिनट यहाँ पे देखो, x cos y माइनस y sin x है, तो डेल z बाई डेल x अगर आप फाइंड करेंगे तो cos y माइनस y cos तो x सही है, डेल z बाई डेल y। डेल z बाई डेल y आप फाइंड करेंगे तो cos का साइन हो जाएगा, है ना? हाँ साइन आएगा तो माइनस x साइन y माइनस y का 1 साइन x एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे साइन आएगा सिर्फ, बाकी सही है ना? Yes, sir. नाउ इट्स नेक्स्ट देखो यहाँ पे। ओके, डन ये हो सर गया? हो गया Done, sir. ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ log का क्या करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर आप सोचेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वहां पे 2x आएगा, जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y आएगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 2z आएगा। डन? क्लियर? तो यहाँ पे देखो, del u by del x 2x upon this, del u by del y 2y upon this, del u by del z 2z upon this. Total derivative of a function u is du is equal to del u by del x dx, del u by del y dy, del u by del z dz. अब यहाँ पे सिर्फ ये तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ एनी कंफ्यूजन?
नो सर। नो सर। Okay, so this is about the total differential, okay, total derivative. So ये यूनिट पूरा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया. So is there any doubt, any confusion in this unit? सर इसकी वो प्रैक्टिस के एग्जांपल अपलोड कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा, हाँ ध्रुव पक्का. इसका भी और ये क्या बोलते हैं और ट्यूटोरियल वाला भी जो पूरा आपको पीडीएफ भेजा था ना वो भी मैं भेज दूंगा. हाँ और सर मतलब इसकी वो डाउट क्लास होगी, वो हम कुछ वो है ना वो यूलर फॉर्म और वो समझ में नहीं आया। हाँ तो बोलो ना, अभी सॉल्व करते हैं. अभी वी हैव 20 मिनट्स. बोलो क्या समझ में नहीं आया. वो यूलर फॉर्म है ना उसमें वो करते हैं ना वो फॉर्मूला अलग अलग, तो